راجعون۔ عزاداران مظلوم کربلا، میں بس ایک ہی جملے سے آغاز کرنا چاہتا ہوں، اور وہ جملہ اگر آپ محسوس کر لیں گے تو رونے کے لیے شاید کافی ہو۔ میں بس اتنا کہوں گا کہ اے بادلوں، اس وقت کہاں تھے کہ جب حسین کے ہاتھوں پر 6 مہینے کا بچہ تھا، اور حسین آواز دے رہے تھے کوئی ہے جو اسے 2 قطرے پانی پلا دے۔ کاش اے بادلوں اس وقت آ جاتے کہ جب حسین اپنے 6 ماہے کے لیے پانی مانگ رہے تھے۔ اللہ اکبر۔ عزیزو ذرا تصور کرے، کلیجہ پھٹ جاتا ہے۔ شب 40 آ گئی ہے، شب 40 ہے، کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے، کچھ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، بس آپ سوچتے جائیں اور گریہ کرتے جائیں۔ عزیزو ذرا سوچئے زینب نے کیسے چہلم منایا ہوگا، ام کلثوم نے کیسے چہلم منایا ہوگا، بی بی سکینہ نے کیسے چہلم منایا ہوگا۔ اب ذرا تصور کریں اور کلیجہ پھٹ جاتا ہے میرے عزیزو۔ آپ ذرا احساس کریں، محسوس کریں۔ تاریخ کہتی ہے کہ روز عاشور ہے، روز عاشور ہے۔ عزیزو میں 40 کے مصائب کل بیان کروں گا، لیکن بس اتنا سنیں، میں بہت زیادہ طولانی گفتگو نہیں کروں گا۔ آپ بس تصور کرتے جائیں اور روتے جائیں، روتے جائیں، گریہ کرتے جائیں۔ تاریخ کہتی ہے کہ جب حسین کے گلے پر خنجر چلا، حسین کے سوکھے ہوئے گلے پر خنجر چلا، عزادارو کیا یہ جملہ مر جانے والا نہ تھا کہ زہرا کے لال پر، زہرا کے لال پر یہ ظلم ہو رہا ہے کہ سوکھا ہوا گلا ہے، خشک گلا ہے، اور شمر کا کند خنجر ہے۔ عزیزو خنجر کند نہیں تھا، خنجر ظالم نے کند کیا تھا۔ جہاں پتھر دیکھتا تھا پتھر پر مارتا تھا، پتھر پر مارتا تھا، خنجر کند ہوا۔ عزیزو تاریخ کہتی ہے کہ جب حسین زین سے زمین کی طرف آئے، زمین پر حسین نہیں آئے، حسین تو تیروں پر معلق ہے۔ عزیزو میں وہ جملہ نہیں کہوں گا جو کتاب میں لکھا ہے، اگر آپ سمجھ گئے تو روتے ہوئے اٹھیں گے۔ ایک مرتبہ شمر ملعون آتا ہے، اپنا زانوے نجیس قرآن پر رکھتا ہے، ادھر کے تیر ادھر نکل آتے ہیں، ادھر کے تیر ادھر۔ عزیزو خنجر چلانا شروع کیا، خنجر چلانا شروع کیا۔ خنجر چلانے کا طریقہ جانتے ہیں کیا ہوتا ہے؟ خنجر کا طریقہ کیا ہے؟ خنجر کیسے چلایا جاتا ہے؟ کبھی قربانی کے وقت آپ نے جانور ذبح ہوتے ہوئے دیکھا ہے، کبھی قربانی کے وقت وہی خنجر چلانے کا طریقہ ہے۔ خنجر چلانے کا طریقہ یہ ہے کہ گلے پر چھری رکھی جاتی ہے، چھری کو کبھی آگے کیا جاتا ہے، کبھی پیچھے کیا جاتا ہے، کبھی آگے کیا جاتا ہے، کبھی پیچھے کیا جاتا ہے۔ یہ خنجر چلانے کا طریقہ ہے۔ مگر کبھی آپ نے لکڑہارے کو کلہاڑی سے لکڑیاں کاٹتے دیکھا ہے؟ لکڑیاں جب کاٹی جاتی ہے تو کلہاڑی کو آگے پیچھے نہیں کیا جاتا ہے بلکہ مارا جاتا ہے۔ ارے روایت کہتی ہے کہ حسین کا گلا خنجر سے ضرور کاٹا گیا، مگر خنجر خنجر کی طرح نہیں چلایا۔ ملعون حسین کے گلے پر خنجر مارتا تھا، حسین آواز دیتے تھے بھیا عباس اجرکم الی الزہراء، اے بھیا عباس کہاں ہو، اے میرے شیر عباس کہاں ہو۔ سننا عزادارو، ظلم یہیں پر تمام نہیں ہوا۔ بعد قتل حسین خیموں میں آگ لگا دی گئی، سیدانیوں کی چادریں چھین لی گئی، خیموں کو جلا دیا گیا، بیبیوں کو اسیر کیا جا رہا ہے۔ سننا عزادارو، تاریخ کہتی ہے، تاریخ کہتی ہے، ایک ملعون کہتا ہے، ایک ملعون کہتا ہے کہ ادھر خیمے جل چکے، بیبیاں خاک پر بیٹھی ہوئی ہیں، سارے لوگ سب کچھ لوٹ چکے ہیں، سب کچھ لوٹ چکے ہیں۔ وہ کہتا ہے کہ میں نے سوچا کہ سب لوٹ چکا ہے لیکن پھر بھی چلتے ہیں، شاید کوئی شے ہمیں بھی لوٹنے کے لیے مل جائے۔ وہ کہتا میں مقتل میں گھوم رہا تھا، مقتل میں جا رہا تھا، مقتل میں ٹہل رہا تھا، کبھی اس لاشے کے پاس جاتا تھا، کبھی اس لاشے کے پاس جاتا تھا، مگر کوئی چیز ہمیں لوٹنے کے لیے نہ ملی، سب کچھ لوٹ چکا تھا۔ وہ کہتا ہے میں لاشے حسین کے قریب آیا، دیکھا وہاں بھی کوئی چیز نہیں ہے۔ وہ کہتا ہے میں واپس جب جانے لگا تو مجھے نظر آیا کہ حسین کی انگلی میں ایک انگوٹھی نظر آ رہی ہے، حسین کی انگلی میں ایک انگوٹھی نظر آ رہی ہے۔ سننا عزادارو، حسین کی انگلی میں ایک انگوٹھی نظر آتی ہے۔ وہ کہتا میں آگے بڑھا، میں نے چاہا کہ انگوٹھی کو اتارے، لیکن حسین کے زخموں کا خون اتنا جم چکا تھا کہ انگوٹھی مجھ سے اتاری نہیں گئی۔ وہ
वो कहता है फिर मैं मक्तल में घूमने लगा कि शायद कोई ऐसी चीज मिल जाए कि जिससे हम खून साफ करें और अंगूठी को उतार ले। वो कहता है मैं मक्तल में घूम रहा था लेकिन हमें कोई ऐसी चीज नहीं मिली। कहता है मैं वापस आया कि फिर कोशिश करके देखते हैं कि अंगूठी उतर जाती है या नहीं। वो कहता है मैं आ रहा था तो मैंने देखा कि एक तलवार का टूटा हुआ टुकड़ा पड़ा हुआ है, तलवार का टूटा हुआ टुकड़ा पड़ा है। वो कहता है मैंने टुकड़ा उठाया और मैं करीब आया, मैं क्या करूं, रवायत में लिखा हुआ है जुमला, मैं क्या करूं अजीजों, अगर महसूस करेंगे तो रोते हुए उठेंगे जिनके सीने में पत्थर नहीं गोश्त का दिल है। सुनना जुमला, सुनना कयामत का जुमला है। एक मरतबा लाशा पामाल है, लाशा पामाल है, बेला कर चुका है, तीरों से छलनी है, उसके बाद फिर भी जुल्म रुका नहीं है। अब जुल्म क्या हो रहा है जानते हैं? वो कहता है तलवार का टुकड़ा मैं लेके करीब आया, मैंने पहले सोचा कि अल्लाह उंगली से खून को तलवार के टुकड़े से साफ करे, अंगूठी उतारे ले जाए, लेकिन वो कहता मैंने सोचा कि ये तो बहुत वक्त लगेगा कि खून साफ करेंगे फिर उतार के ले जाएंगे। वो कहता मैंने खून नहीं साफ किया बल्कि पास पड़े हुए पत्थर को उठाया और हुसैन की उंगली को उस पत्थर पे रखा, एक अंगूठी के लिए हुसैन की उंगली को तोड़ डाला, ज़हरा तड़प गई, हाय मेरा बच्चा, हाय मेरा लाल। अल्लाहु अकबर, अजर को मिला ज़हरा। बस आखिरी मरहला है, आखिरी दो जुमले सुने और मजलिस तमाम है, जितना रोना है रो ले। आखिरी दो जुमले सुने अज़ादारों। तारीख कहती अभी आप देखेंगे कि मातमी मातम करेंगे, मातम करेंगे, वो भी जंजीर आम जंजीर नहीं होगी, आग से जो सुर्ख हो चुकी होगी वो जंजीर है, वो जंजीर है। मैं उसी की याद दिला रहा हूं आपको, याद दिला रहा हूं, वो जंजीर है। क्यों? जलती हुई जंजीर है ना, जलती हुई जंजीर है। क्या आपके दर्द नहीं होगा? ये दर्द क्या है? इस दर्द की औकात क्या है, हैसियत क्या है? इस दर्द की क्या हैसियत है? कोई सैयद सज्जाद से पूछे, हाथों में हथकड़ियां है, पैरों में बेड़ियां है और अरब की वो चिलचिलाती हुई धूप है, अरब की चिलचिलाती हुई धूप। अजीजों मैं आपको एहसास दिलाऊं, जब शिद्दत की धूप हो, यूपी में तो बड़ी सख्त धूप होती है, मैं यहीं की बात करूं, जब शिद्दत की धूप हो तो कभी इस पत्थर पे नंगे पैर चल के देख लेना, इस पत्थर पे नंगे पैर चल के देख लेना कि क्या महसूस होता है। और महसूस करना चाहते हैं तो कभी वक्त मिले तो आप एक लोहे के टुकड़े को 4-5 घंटे धूप में डाल के देख लेना, उठाएंगे तो उठाया नहीं जाएगा, हाथ जल जाएगा। क्यों? कल लोहे का टुकड़ा इतना जल रहा होगा कि बैद नहीं हाथ में छाले पड़ जाए। आप सोचिए ये हिंदुस्तान की धूप है, अगर 4-5 घंटे लोहा डाल दे तो आप उठा नहीं सकते, हाथ जल जाएगा। वो अरब की चिलचिलाती हुई धूप और सैयद सज्जाद के हाथों में हथकड़ियां, पैरों में बेड़ियां, कमर में लंगार, गले में खारदार तौर, और एक दिन के लिए नहीं, करबला से कूफा, कूफा से शाह। तारीख कहती एक मंजिल पे काफिला पहुंचा, मैंने कभी अर्ज किया था एक मंजिल पे काफिला पहुंचा। ये मंजिल वो थी कि जहां थोड़ी देर के लिए सबके गलों को खोल दिया गया था। अब सुनना आजादारो, ये दिन का वक्त है, शिमर ने अपना खैमा लगाया और अपने सिपाहियों को खैमे में बिठाया, मगर अहले बैते पैगंबर को धूम में बिठाया, आले रसूल को धूम में बिठाया। तारीख कहती है कि धूम में शिद्दत इतनी थी कि सैयद सज्जाद से जब जलती हुई हथकड़ियां बर्दाश्त ना हुई तो उठे और चाहा कि जो शिमर ने खैमा लगाया है इसकी पुष्ट पा साए में बस इतनी देर हम जाके बैठेंगे कि हथकड़ियां ठंडी हो जाए, हम फिर धूम में आ जाएंगे। अभी गए ही थे कि जंजीरों की झनकार शिमर के कानों तक पहुंच गई। वो ताजियाना लहराता हुआ, ताजियाना लहराता हुआ आगे बढ़ा। सैयद सज्जाद के पुष्ट पर ताजियाने मार के कहता है, सज्जाद तुम्हारी जगह ये नहीं है, सज्जाद तुम धूम में बैठो। तारीख कहती है इधर सैयद सज्जाद धूम में आए, इधर ज़ैनब से ये मंजर न देखा गया, ज़ैनब से ये मंजर न देखा गया। अभी अंगारों का मातम देखेंगे ना जंजीर की शक्ल में। सुनना आजादारो, तारीख कहती है कि इधर सैयद सज्जाद धूम में आए, इधर ज़ैनब से मंजर न देखा गया। एक एक बीबी को बुलाया, उम्मे कुलसूम मेरे पास आओ, रबाब तुम भी आ जाओ, रुकैया तुम भी आ जाओ, आवाज दी सैयद सज्जाद तुम दरमियान में बैठ जाओ, हम तमाम बीबियां तुम्हारे चारों तरफ खड़े हो जाएंगे ताकि तुम पर इतना साया कर सके कि तुम्हारी हथकड़ियां ठंडी
हो जाए। अभी बीबियां खड़ी थी कि धूप में इतनी शिद्दत थी कि एक एक बीबी जमीन पर बैठ गई। अब तो देखा तो अकेली ज़ैनब। आवाज दी फूफी अम्मा आप क्यों ना बैठ जाती है? आवाज दी मेरे लाल, अरे मैं कैसे तुझे इस हालत में छोड़ूं? क्योंकि जाते जाते तुम्हारे बाबा ने कहा था ज़ैनब मेरे बच्चे तुम्हारे हवाले, ज़ैनब ख्याल रखना। अल्लाहु अकबर। हाँ आज़ादारों, तारीख कहती है अब काफिले को और आगे बढ़ाया गया, काफिले को और आगे बढ़ाया गया। काफिला पहुंच गया यजीद के दरबार में, यजीद के दरबार में काफिला पहुंच गया। सुनना आज़ादारों, तारीख कहती है कि जब यजीद के दरबार में काफिला पहुंचा तो सबके गलों को, जैसे ही दरवाजे पर काफिला पहुंचा, सबके गलों को बहुत ज्यादा और सख्त रस्सी के साथ कस दिया गया था। ये जुमला पढ़ना और सुनना आसान था। सबके गलों को फिर से दोबारा बांधा गया था। सुनना आज़ादारों कि किसी की रस्सी ढीली तो नहीं हो गई है, इसलिए और सख्ती के साथ बांधा गया। अब सुनना आज़ादारों, जुमला एक है, अगर समझ गए तो रोते हुए उठेंगे और शायद इसी जुमले पर मजलिस तमाम हो जाएगी। उसके बाद अंजुमन हाय मातमी मातम करेंगे। सुनना आज़ादारों, जितना रोना है रो ले, तसव्वुर कीजिएगा कलेजा फट जाता है। मैं पहले एहसास दिलाता हूं कि आपके सामने भी छोटी छोटी बच्चियां होंगी, छोटी छोटी बच्चियां होंगी। छोटी बच्चियों की एक फितरत होती है कि जब भी उन्हें कोई अजियत घर में होती है तो वो बच्चियां क्या कहती हैं। मसलन अगर माँ ने एक तमाचा बच्ची को मार दिया तो वो बच्ची यही कहती है ना, अम्मा रुक जाइए, जब शाम को बाबा आएंगे तो हम तुम्हारी शिकायत बाबा से करेंगे। बच्चियां यही कहती है ना, भाई से कोई ईजा पहुंची है, आवाज देती है भैया रुक जाओ, शाम को हम तुम्हारी शिकायत बाबा से करेंगे। बच्चियां यही कहती है ना। अब सुनना, करबला से शाम तक सकीना कभी तमाचे खाती है, कभी ताजियाने खाती है, कभी बालियां छिनती है, कभी चादर लुटती है, कभी खैमे जलते हैं। शिकायत करे तो किससे करे? तारीख कहती है काफिला आ गया यजीद के दरबार में। यजीद मलून बैठा हुआ है, पूछता है तारुफ कराओ, ये लोग कौन है बताओ। तो एक मरतबा तारुफ हो रहा है, ये अली की बेटी ज़ैनब, ये अली की बेटी उम्मे कुलसूम, ये लैला रुकैया, ये सकीना। जैसे ही सकीना का नाम सुना, एक मरतबा यजीद कहता है सकीना मैंने सुना है तुम्हारा बाबा तुम्हें बहुत चाहता है। बच्ची ने जवाब दिया मगर कोई सुन ना पाया दरबार में। मैंने कहा ना जुमला एक है, अगर आप महसूस करेंगे तो रोते हुए उठेंगे और यही पर मजलिस तमाम हो जाएगी। आवाज दी सकीना, यजीद कहता है सकीना मैंने सुना है तुम्हारा बाबा बहुत चाहता है। आवाज दी, सकीना ने जवाब दिया लेकिन कोई दरबार में सुन नहीं पाया। दोबारा यजीद कहता है सकीना मैंने सुना है तुम्हारा बाबा बहुत चाहता है। बच्ची ने फिर जवाब दिया मगर कोई दरबार में सुन ना पाया। तीसरी मर्तबा कहा, यजीद कहता है सकीना मैंने सुना है तुम्हारा बाबा बहुत चाहता है। बच्ची ने जवाब दिया मगर कोई सुन ना पाया। सुनना आज़ादारों, बस एक मर्तबा जब 3 बार सवाल हुआ, बच्ची ने जवाब भी दिया और कोई नई दरबार में सुन पाया, तो एक मर्तबा शिम्र ताजियाना लेके आगे बढ़ा, चाहा कि बच्ची को अजियत दे। ताजियाना जानते किसे कहते हैं? ताजियाना अरब में इंसानों के लिए नहीं होता है, ताजियाना इंसानों के लिए नहीं होता है। मैं आसान जबान में समझा दूं ताजियाना किसे कहते हैं। कभी आप पुलिस लाइन जाइएगा तो वहां जो घोड़े होते हैं उनके लिए ताजियाना रखा जाता है, उनके लिए ताजियाना रखा जाता है। और हर घोड़े को नहीं मारा जाता है ताजियाना, जो इंसान से नहीं संभलता है उस घोड़े को ताजियाना मारा जाता है। अब जरा सोचिए ताजियाना मारने में कितनी शिद्दत होती है, कितनी सख्ती के साथ ताजियाना पड़ता है। जो अरब में जानवरों के लिए है वो एक 4 साल की बच्ची को अजियत दी जा रही है। अजीजों अगर तसव्वुर करे तो मर जाने वाले ये जुमले हैं कि ताजियाने मारे जा रहे हैं। ये आम बात है, सुन लिया जाता है। अहले बैत को ताजियाने मारे गए, अहले बैत के चाहने वालों को ताजियाने मारे गए हैं। ये आसान बात नहीं है, ताजियाना बड़ा सख्त होता है। सुनिएगा आज़ादारों, जैसे ही शिम्र ताजियाना लेके आगे बढ़ा, इधर से सैयद सज्जाद आगे बढ़े, आवाज दिया मेरी बच्ची को
ताज़ियत न दे। अब सकीना में ताज़ियाने खाने की ताकत नहीं है। आवाज दी, ये बच्ची जवाब क्यों नहीं देती है? यजीद बार बार सवाल करता है, ये बच्ची चुप क्यों है, जवाब क्यों नहीं देती है? एक मरतबा सैयद सज्जाद कहते हैं, अरे मेरी सकीना जवाब तो बार बार दे रही है, क्या कोई भी दरबार में सुन क्यों नहीं पा रहा है? क्या कोई कैसे सुन पाए? क्योंकि तूने मेरी बच्ची के गले को इतनी कस के बांध दिया कि आवाज बाहर नहीं आ रही। जरा रस्सी को तो ढीला कर दे। यजीद ने कहा सकीना का गला खोला जाए। सकीना का गला खुला, सरे हुसैन लाया गया। बड़े दिन बाद बाबा से मुलाकात हुई। आवाज दिए, बाबा आपके बाद तमाचे मारे गए, ए बाबा आपके बाद ताज़ियाने मारे गए, ए बाबा आपके बाद मातम।